और कोई है क्या? रिकॉर्डिंग पे कर दिया? Now, good morning. Today we are going to start a new topic that is known as the directive principle of state policy. Directive principle of state policy. Am I audible? Yes, sir. Okay. अब देखिए, जैसे मैं स्टार्ट किया अब लोग इसमें जुड़ना शुरू हो रहे हैं. बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि anybody can tell me the meaning of the directive principles and what are the difference between directive principles as well as fundamental rights. कोई हमें आइडिया दे सकता है? Any rough idea? And why guidelines for the state. Guidelines to the state. Okay. Anyone else? और कोई? Anyone who has idea? मेरी वॉइस मिल रही है? Yes, sir. Fundamental rights is negative in nature and DPSP is positive in nature. What is the meaning of negative and positive? Negative in nature and positive in nature. Can you explain it? Negative in nature in the sense that it prohibits It prohibits to the government against government. infringement of Government. rights. Yeah. Government or state and whatever we. Okay. And in directive principle, it don't restrict the right of the government. In simple language, you can say that in fundamental right, courts can restrict the rights of the state machinery. But in directive principle, court don't have power to restrict that. If government will do it, well and good. If it will not do, nobody can stop, nobody can impose restrictions, or nobody can give the order and etc. This is the reason why directive principles is known as the positive. पॉजिटिव का यही सेंस है कि सरकार के पॉजिटिव है, तो जनता के पॉजिटिव तो नहीं है, बट इट इज पॉजिटिव टू द गवर्नमेंट. अब वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट व्हाई आफ्टर 5 years जनरल इलेक्शन टेक्स प्लेस. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, व्हाट इज नीड ऑफ टू फॉर्म द गवर्नमेंट? कोई हमें बता सकता है? 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा. I asked 2 questions. इलेक्शन क्यों होता है और सरकार क्यों बनाई जाती है? Anyone? To govern the state. To govern the state. ठीक है. तो गवर्न द स्टेट के लिए क्या जरूरत है? नेता के क्या जरूरत है? सरकार की क्या जरूरत है इतने पैसे खर्च करने की? जब हमारे पास कोर्ट्स हैं तो कोर्ट तो गवर्न कर ही रहे हैं. कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर टू द अरे रेनू को फोन आ रहा था, कॉल बैक करो उस नंबर से. कुछ बोल दो क्लास में. इधर मोबाइल है, इधर मोबाइल है.
यहाँ नहीं है, वहाँ पे, यहाँ नहीं है, वहाँ पे होगा। यहाँ so let's come two things: government and general election. And by this general election, we elect MLAs, MPs, local body and etc. देखिए, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, which agency will implement it, that is a big problem. So implementation of these directive principles is in hand of the government. अब government में two types of people. One people are permanent executives. There are two types of the people that are existing in government. Permanent executive and temporary executive. Temporary executive. What is the meaning of permanent executive and temporary executive? The IS officers. हाँ. In which category? Permanent or temporary? Permanent. हाँ. जो ब्यूरोक्रेसी है, IAS, PCS, अदर ऑफिसर्स, JEE, AE, जो भी जितने तरह के भी आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में है, जिनको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी का कैटेगरी दी जाती है, ठीक है ना? और टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव्स आर द PM, CM, मिनिस्टर्स, एक्सेट्रा. अब देखिए, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव मीन्स गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट जाए, चीफ मिनिस्टर कोई हो, प्राइम मिनिस्टर कोई हो, मंत्री कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ज्यादा होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी, इनका ट्रांसफर पोस्टिंग कर देगी, बट इनकी नौकरी जैसे है वो ऐसे ही रहेगी. प्रमोशन होगा, स्लोली एंड स्लोली देयर रैंक विल इंक्रीज, बट दे हैव ए परमानेंट जॉब. अब जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसको तो डायरेक्शन कोर्ट से मिल जाता है और दे आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट इट, अदरवाइज इट वुड बी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कोर्ट विल टेक द डिसीजन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑफिसर. दिस टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव, इनको जनरली ज्यादा कोर्ट इनको इंटरफियर नहीं करता है और ज्यादा इनको ऑर्डर्स नहीं देता है, बट देता है, ये मत सोचिए कि नहीं देता है. जैसे अभी several high courts are criticizing the different government as well as the central government for non-proper management of the oxygen gases and etc. So these temporary executives are more powerful. More powerful means कि मतलब जब तक ये अपनी कुर्सी पे हैं तब तक इनके पास बहुत सारी ताकत होती है. When they are out from the chair, then they don't have power. ये जो टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे हैव ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विद हेल्प ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव. कोई नेता जल्दी सिग्नेचर फाइल पे नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा. आपका एवरीडे जो वर्क है उसमें नेता का, मंत्री का कोई रोल नहीं होता है. उसका केवल रोल होता है कि जब बड़े लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे कोई डिसीजन होता है, then the file goes for the approval of the concerned minister, approval of the chief minister, approval of the governor and etc. Everyday file that is governed by our permanent executives. Okay, तो जो भी हमारे नेता आएंगे, नेता का इलेक्शन होगा, by the election they will be elected, then they have duty to implement the directive principle. जैसे रोड बनाने का, पानी की व्यवस्था करने का, बिजली की व्यवस्था करने का, सड़क के किनारे नाली बनाने का,
whose microphone is on? किसका माइक्रोफोन ऑन है? समझ रहे हैं आप? चीजें समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि ऐसे जो काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव्स की होती है, और दिस इज द रीजन व्हाई इलेक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस. अगर इलेक्शन नहीं होगा तो डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा, बिकॉज दीज आर द कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, यू कैन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड एक्सेट्रा. तो इसी चीज के लिए इलेक्शन किया जाता है. इलेक्शन करके उसमें जो सुटेबल कैंडिडेट होता है उसको उस पोस्ट पे बैठाया जाता है, एंड दैट सुटेबल कैंडिडेट विल टेक द डिसीजन. क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है कि if these directive principles are not implemented, nobody has right to move in court. मान लीजिए रोड की बात है, सरकार के पास पैसा नहीं है, रोड कहां से बनाएगी? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाइए कोर्ट में मूव कर दीजिए, कह दीजिए कि मेरे घर के सामने रोड सरकार ने नहीं बनाया है. तो कोर्ट विल नॉट एंटरटेन दिस, बिकॉज दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल. इफ इट विल बी डन देन वेल एंड गुड. अब मान लीजिए कोर्ट इसको नहीं प्रोटेक्ट कर रही है, तो हु विल प्रोटेक्ट इट? पब्लिक. इफ एनी लीडर विल डू द वर्क एंड इट विल डू द गुड वर्क, then he will re-elected, re-elected, re-elected. Or if the leader will not do work, they just befool the common people, they will earn money, they will become rich person. So next tenure में उनकी छुट्टी हो जाएगी. So this is the meaning of the directive principle. अब these directive principles that can be classified in 3 categories. एक categories आप लिखते चलिए. And it is taken from Irish Constitution. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है. It is taken from Irish Constitution. डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स can be classified in 3 categories. One category is socio-economic principle. Socio-economic principle. Socio-economic principle. Socio-economic principles. अब इसमें एक एक पॉइंट ऑफ नोट करते चलिए. व्हाट आर द सोशियो-इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स? फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सोशियो-इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, हम आपको स्क्रीन पे ले क्या? आप नोट कर रहे हैं? Yes, sir. लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए. इस सोशियो-इकोनॉमिक प्रिंसिपल द फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. To promote the welfare of people by securing a social order, by securing a social order by securing a social order permitted by justice, permitted by justice
permitted by justice. और कौन कौन से जस्टिस हैं? That are socio-economic and political. That is socio-economic and सर yeah, political. क्या बोलिए? परमिएटेड होगा या परमिटेड होगा सर? परमिएटेड है, PERMEATED, permeated. ओके Permitted by justice, social, economic, and political. And political. This comes under Article 38. Article 38. और जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है किस चैप्टर में है? इन विच चैप्टर इट इज मेंशन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज मेंशन इन चैप्टर 4. ये भी एग्जाम में बार बार आता है. इट इज मेंशन इन चैप्टर 4. अब देखिए, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपुल बाय सिक्योरिंग a social order permitted by the justice, that is social, economic and political. It means to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunities. To minimize inequality in status, opportunities, लिख लो, to minimize inequalities in income. सर लिख देने से सीधे To minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. Facilities and opportunities. देखिए, टू मिनिमाइज इनकम, मिनिमाइज इक्वलिटी इन इनइक्वलिटी इनकम, इसका मतलब सरकार ऐसे काम करेगी जिससे पुअर और रिच के बीच में जो गैप है वो गैप कम से कम हो. यानी गवर्नमेंट विल मेक सच पॉलिसीज इन विच पीपल ऑफ द पुअर कैटेगरी that will be the protected and income difference that should be reduced. Second, status. Status में भी वही है कि कोई किसी पोस्ट पे हो, किसी पे भी हो, सब एक जैसा रहेगा. And अपॉर्चुनिटी, सबको जॉब पाने की, गवर्नमेंट जॉब पाने का अधिकार है. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोशो इकोनॉमी. अब देखिए, अगर इन चीजों को इक्वलाइज कर दिया जाए तो भारत में क्या होगा? व्हाट वुड बी? ये देखो, सबके बराबर इक्वल पैसा हो जाएगा तो कोई अपने को बहुत रिच नहीं समझेगा. सब अगर बराबर से जॉब पा जाएंगे, बराबर पोस्ट पा जाएंगे, अगेन इक्वलिटी विल रिड्यूस. सो ऑन. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट करेगी, नहीं करेगी, कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, दैट इज सेकेंड इशू. सेकेंड पॉइंट ऑफ द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. टू secure point A, the right to educate means of livelihood. The right to educate means of livelihood. To educate means of livelihood.
for all citizens. अब आप बताइए, कोई सरकार अच्छी सरकार है, खराब सरकार है, उसका इवेल्युएशन हम कैसे करते हैं? हाउ वी इवेल्युएट इट? व्हाट आर द पैरामीटर्स? एनीवन? Any government is good government or bad government, how can evaluate? कोई बताएगा? भाई देखिए, एक पैरामीटर हमारा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने देखा कभी कुछ दिन पहले अनएम्प्लॉयमेंट वाज ऑन पीक फ्रॉम लास्ट 70-75 years. If the unemployment in country or any state or any place is higher, then it is not sign of a good government. अच्छी सरकार वही है जिसके जमाने में सबको रोजी रोटी का अधिकार मिले, हर एक आदमी बिजनेस करने का अधिकार मिले और आराम से धीरे धीरे सबकी चुप, जब अगर सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, then the income of individual will increase, and when the income of individual will increase, then income of the nation will increase, and ultimately country will grow. यही तो फॉर्मूला है ना? समझ में आया कि नहीं आया? सर रिपीट देखिए, आपको नेटवर्क नहीं है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है क्योंकि आपकी वॉइस हमें नहीं सुनाई दे रही प्रॉपर्ली। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, एक अच्छी सरकार वही कही जाएगी जिसके जमाने में कम से कम बेरोजगार। अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उसको तुरंत जॉब मिल जाता है तो वो अपनी एनर्जी जॉब में लगाता है। In that way he earns the money. When a person will earn the money, then the income of the state will increase, income of the country will increase, country will grow. अब मान लीजिए किसी स्टेट में बेरोजगारी बहुत है, जॉब नाम की चीज ही नहीं है। जॉब कब होगा? When the government will bring several projects, when government will start several activities, several works, तभी तो जॉब मिलेगा। जॉब तो ऐसे कोई सड़क पे चलते तो मिलता नहीं है। तो अच्छी सरकार होगी तो उसकी अच्छी पॉलिसीज होंगी, अच्छे प्लान्स होंगे, अच्छे प्लान्स होंगे, अच्छी पॉलिसीज होगी, पीपल विल गेट मोर एंड मोर जॉब्स। When the people will get more and more jobs, then their income will increase, and by increasing the income of the state will increase, and in this way the country will grow. So this is the first thing. Second point, the equitable distribution of material resources of community for common good. The equitable distribution of material resources. Distribution of material resources. Material resources of the community for common good. Of the community for common good. For common good. अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी प्रदेश में जो लैंड है, that land is concentrated only few people. जैसे बिहार है, बिहार बहुत गजब का एग्जाम्पल है। वहां पे कुछ लोग भूमिहार होते हैं। भूमिहार का मतलब होते हैं जिनके पास अभी भी जमीन है, मतलब किसी के पास 100 एकड़, किसी के पास 50 एकड़, किसी के पास 30 एकड़, इस तरह से। और मैक्सिमम लोग जो हैं उनके पास जमीन है ही नहीं।
So definitely those people who don't have any land, they are struggling for bread and butter, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, करेंगे क्या? न खेत है न कुछ और है, वो दूसरे के यहाँ जाके नौकरी करेंगे, बाहर जाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। और बिहार पीपुल्स आर वेरी स्ट्रगलिंग टाइप ऑफ द पीपल। वो कहीं भी जाते हैं, अपने को एडजस्ट कर लेते हैं और दे सर्वाइव। दिस इज द गुड थिंग इन बिहार पीपल। तो अब होगा क्या कि अगर सरकार जमीन को सब में बांट दे, सबके पास 5 10 एकड़ जमीन होगी, तो द पीपल हु हैव लैंडलेस पीपल, they will get some land and at least they can grow different types of the vegetables, crops and etc. तो कम से कम उनकी जीने की तो व्यवस्था हो जाएगी। This is the duty of the government under the directive plan. After the formation of the new government in India, existing government, it started land reforms. और उस समय जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। मैक्सिमम स्टेट्स में जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया, बट अगेन few states means like Bihar, some part of the UP and etc. that remain as usual. Third point, prevention of concentration of wealth and means of production. Prevention of concentration of wealth. Prevention of concentration of wealth and means of production. And means of production. आप में से किसी को पता है सबसे ज्यादा मिनरल रिच स्टेट इंडिया का कौन सा है? Which state has maximum mineral and natural resources? Anyone? झारखंड होगा। क्या कौन सा सर झारखंड। हाँ, झारखंड एकदम सत्य है। झारखंड के पास सबसे ज्यादा मिनरल्स है, लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उसको एक सबसे डेवलप स्टेट नहीं बना पाई। पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ द बिहार एंड आफ्टर दैट इट हैज बीन सेपरेटेड इन 2000। आफ्टर पासिंग ऑफ 21 years, till now it is a backward state. It is not a forward state. The reason is that whenever the government fails, they don't concentration of proper utilization of the resources, etc. etc. Corruption is on high level, so on. तो अब देखिए है क्या कि ये सरकार की ड्यूटी है कि वो जिस स्टेट में मिनरल्स नहीं है उस स्टेट को मिनरल्स दे। कहां से देगा? जहां पे सबसे ज्यादा है। अदरवाइज वन स्टेट विल डेवलप प्रॉपरली एंड द स्टेट विल नॉट डेवलप प्रॉपरली। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के पास व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? किसी को आइडिया है? हाइड्रो पावर। ठीक है, हाइड्रो पावर और कोल है, पेट्रोल है। सर ये सर क्या था? बताइए। सर क्रॉप्स में भी आएगा, एग्रीकल्चर में। देखो एग्रीकल्चर में तो रीडिंग नहीं है। अरुणाचल इज नॉट लीडिंग स्टेट इन द एग्रीकल्चर। इट इज आल्सो नॉट लीडिंग इन द पेट्रोलियम, कोल एंड इट इज लीडिंग इन हाइड्रो। इसमें तो कोई शक नहीं है। और आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की सारी इनकम केवल हाइड्रो पावर से है। द टोटल इनकम ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द न्यू डाटा इज only 2000 crores, only 2000 crores, and the budget is around 20,000 crores. 80,000 crores is obtained by the central government. अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट
पैसा देना बंद कर दे तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार अरुणाचल के लोगों को सैलरी नहीं दे पाएगी। आप समझ सकते हो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट डेवलपिंग। क्यों? क्योंकि इसको सब हमेशा डिपेंडेंट सेंटर पे रहना है। सेंटर कभी पैसा दिया, कभी पैसा नहीं दिया, टाइम से पैसा नहीं दिया। आप देखिए स्टाइपेंड के लिए आप मारामारी वहां पे मची हुई है। हर साल मैं देखता हूँ कि बच्चों के स्टाइपेंड में प्रॉब्लम आती है। 25-50-100 करोड़ का फंड है, लेकिन उस 25-50 करोड़ को भी स्टेट गवर्नमेंट बियर करने के सिचुएशन में नहीं है। रीजन इज दैट इट डोंट हैव इट्स ओन मनी। ठीक है ना? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, अरुणाचल कैन बी डेवलप एज ए वेरी गुड टूरिस्ट प्लेस। बट व्हाट आर द हर्डल्स? बिगेस्ट हर्डल इज देयर इज नो रोड्स, there is no network connectivity, there is no good hospitals, etc etc etc। तो चलिए वो तो बात की बात है, उसको तो हम जब आएंगे वहां पे तो डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे कहने का मतलब है कि ये सरकार का ड्यूटी है कि अगर एक स्टेट में वेल्थ कंसंट्रेटेड है और दूसरे स्टेट में वेल्थ नहीं है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करके they should try to develop the all state, because country will develop by developing of all states, not only one state or two states। Next point D। कौन से स्टेट को कितना पैसा एलोकेट करना है वो कैसे डिसाइड होता है? वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। एक फाइनेंस कमीशन बनता है एवरी 5 ईयर। फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स हाउ मच मनी शुड गो टू व्हिच स्टेट। अब आप सोचिए यूपी का बजट 5 लाख करोड़ का है, ठीक है ना? इट आल्सो गेट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द सेंटर। तो वो एक तो पॉपुलेशन के ग्राउंड पे है, एरिया के ग्राउंड पे है, उसके बहुत सारे फार्मूले हैं। ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला इट इज डिसाइडेड। देखिए पेमा खांडू की मजबूरी क्या है? कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में क्यों आ गए? कोई सब कभी सोचा समझा? क्योंकि चीफ मिनिस्टर को पैसे की इंतजाम करना होता है, व्यवस्था करनी होती है। चीफ मिनिस्टर व्यवस्था कहां से करेगा? सेंटर से ही करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी इनकम है ही नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है जो अरुणाचल प्रदेश में कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो। ओनली वन थिंग, हाइड्रो पावर, और जो छोटे मोटे आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रोड्यूस हैं उनसे। तो अब चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? उसको सेंटर से पैसा लेना होगा। सेंटर से पैसा लेने के लिए उसको सेंटर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने होंगे। और दिस इज द रीजन व्हाई ही शिफ्ट हिज गवर्नमेंट फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी एंड नाउ अडेयरिंग विद बीजेपी। आज भी सेंटर में अगर केंद्र में सरकार बदल जाए, हो सकता है कल ये फिर दोबारा बदल जाए। So this is the compulsion of your chief ministers to follow the center। रूल और रेगुलेशन तो बहुत सारे हैं, कितना पैसा मिलना चाहिए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन कुछ होता नहीं इस देश में। वो ऐसे को ऐसे फाइल में बंद पड़ा रहता है। इफ यू डोंट हैव गुड रिलेशन यू डोंट गेट मनी। और पैसा मिलेगा 3 साल बाद मिलेगा, तब तक आपकी सरकार गिर जाएगी। ये प्रॉब्लम है। पॉइंट डी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सर अरुणाचल का टोटल बजट सर 30,000 करोड़ है ना सर? अरुणाचल की इनकम है नियर अबाउट 2000 करोड़ और टोटल जो बजट है वो अराउंड 20,000 करोड़। तो आप सोचिए 18,000 करोड़ का शॉर्टेज है कि नहीं है? मैं एक नियर अबाउट बता रहा हूँ, 21 भी हो जाएगा, 22 भी हो जाएगा, ठीक है ना? बट इट इज ए लमसम। अब सोचिए 18,000 करोड़ की कमी है, जो आपकी जनता जो है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो फट से धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं चीफ मिनिस्टर के यहाँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्टाइपेंड दो, स्टाइपेंड दो, स्टाइपेंड दो। अरे ये कोई फंडामेंटल राइट है क्या यार? स्टाइपेंड दो, नहीं देगी सरकार, पैसा नहीं है तो क्या कर लोगे भाई? कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं है कि आप पहुंच जाओगे, कोर्ट में चले जाओगे, कोर्ट आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। ये तो सरकार इसलिए करती है कि हमारे बच्चों को
कुछ पैसा मिल जाएगा, वो उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, उनको सामान मिल जाएंगे, स्टेशनरी, बुक्स एक्सेट्रा। लेकिन इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज वेरी वेरी रॉन्ग वे टू फोर्सफुली डिमांड ऑफ दिस थिंग। बिल्कुल गलत है, कानूनी तरीके से बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। फॉर मेन एंड वुमेन। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों को इंदिरा गांधी ने जोड़ा, ये सारे पॉइंट इंदिरा गांधी ने जोड़ा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, ऐसा होता है कि नहीं होता है, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इट शुड बी एंड इट शुड नॉट बी। होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। यस सर। लेकिन होता है कि नहीं होता है? प्रैक्टिकली इट इज हैपनिंग और नॉट? नो। नो, प्रैक्टिकली नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में तो थे। हाँ, होता है सर, ये तो हाँ? सर होता है, इक्वल होता है सर। गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट में तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखिए, सुबह मॉर्निंग नाहरलगुन के चौराहे पे पहुंच जाइए, गंगा चौराहे पे पहुंच जाइए, वहां लेबरर मिलेंगे, दे आर मेल एंड फीमेल बोथ। लोग कहेंगे यार फीमेल के लेक्चरर्स को 250 रुपए कम देंगे। होता है, ऐसा होता है। एक ही काम के लिए अगर मेल और फीमेल दोनों को हम ले आते हैं जॉब कराने, तो एक को 800 रुपए या 700 या 600 रुपए पर डे देंगे, तो दूसरा को सोचेंगे कि अगर इसको 550 ही देना पड़े तो बहुत अच्छी बात। इट इज द मेंटेलिटी। और होता भी है, बहुत सारे लोग देते भी नहीं है, कहते हैं अरे भाई आप तो फीमेल हो, आपको क्यों इतना पैसा दो। इट इज रॉन्ग। ये गलत है कि नहीं है? इट इज राइट और इट इज रॉन्ग? रॉन्ग सर रॉन्ग रॉन्ग है। है। हाँ, रॉन्ग है, क्योंकि एक ही जब काम करा रहे हो, मान लो व्हाइट वॉश कराना है, तो लेडीज भी उतना ही काम कर रही है, जेंट्स भी उतना कर रहा है, तो पैसा का डिस्टिंक्शन कैसे कर रहे हो भाई? नॉट पॉसिबल। अब देखिए, गवर्नमेंट में क्या है, इफ यू आर सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इक्वल सैलरी, इक्वल इमोल्यूमेंट, एवरीथिंग इज इक्वल। तो इन गवर्नमेंट जॉब, government has implemented it, but in private jobs it has not been implemented till now. तो ये जितने सब पॉइंट्स हम आपको डिस्कस किए, इट कम्स आर्टिकल 39। आर्टिकल 39, ठीक है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 39 में आएगा ना सर? ये सारे, हाँ, ये जो सेकंड टू कह रहा हूँ, 2A 2B 2C 2 3, ये सब के सब आर्टिकल 39 में है। आपसे एग्जाम में आई डोंट एक्सपेक्ट आर्टिकल पूछा जाएगा, ये जरूर पूछा जाएगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू मेन एंड वुमेन इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल और इट इज अ फंडामेंटल राइट और इट इज एनी अदर थिंग। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, बट याद कर सको तो दैट वुड बी बेटर। नेक्स्ट पॉइंट 3। अब देखिए, ये सब सोशल इकोनॉमिक है कि नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल है। सबको समाज में बराबर लाने की कोशिश की जा रही है। यू हैव सीन इक्वलिटी, आपको फंडामेंटल राइट में भी दी गई है, लेकिन वहां सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वलिटी इन द डिफरेंट वे दैट हैज बीन गिवन। हियर इट इज गिवन इन दिस वे। नेक्स्ट, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, to promote equal justice, to promote equal justice, to provide free legal aid, to provide free legal aid, to provide free legal aid to the poor, to the
poor. It is Article 39A. Article 39A. ये भी बाद में जोड़ा गया. This article has been also added by the Srimati Indira Gandhi. किसका माइक्रोफोन ऑन है? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड का मतलब क्या है कि जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स में कि अगर किसी के पास जेल में चला गया और उसको वकील करने का पैसा नहीं है तो ये सरकार की ड्यूटी है कि उसको लीगल एड मिले, मतलब उसको वकील मिले, उसको और सारी मदद मिले. दिस कम्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. Next, point 4. To secure the right to work, comma, to education and to public assistance. क्या? Down है तू दल. To education. किसका माइक्रोफोन ऑन है? Whose microphone is on? ऐसा मत करो भाई, नहीं तो हम यहाँ से म्यूट कर देंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. रुकिए सर, रुकिए थोड़ा. अच्छा, कर लीजिए. अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ठीक कर लीजिए. जेसीए का है मेरे ख्याल से. जेसीए टाइम. सर वो रुकिए सर, तू रुकिए सिक्योर थोड़ा. द राइट नहीं होगा क्या? क्या हो रहा है? तू सिक्योर द राइट होगा ना वो. तो सिक्योर द राइट टू वर्क. स्पीकर डन. So now let's continue. Now I think noise is sorted out. सर आपने वो गलती लिखी है. तो क्या कर दिया गलती से? तू सिक्योर द राइट वो नहीं लिखे, तू अच्छा. लिखा है वो. Okay, to secure, to right to work, to educate. हाँ, आगे लिखिए. आप लिखिए to education and किसका फोन है यार? To education and to public assistance. And to public assistance. And to public assistance of unemployment, sick and old age and old age people. देखिए, कह रहा है कि सरकार की ड्यूटी है या सरकार का काम है टू सिक्योर राइट टू वर्क, मतलब हर एक आदमी को काम का अधिकार मिले, टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार मिले, एंड पब्लिक असिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिक एंड ओल्ड एज पीपल, जो बीमार लोग हैं उनके लिए कुछ असिस्टेंट मिले, अनएम्प्लॉय को कुछ असिस्टेंट मिले, ओल्ड एज पीपल को मिले। सरकार ऐसा करती है नहीं करती है? करती है। गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स आर देयर। क्या करती है? पब्लिक हेल्थ के लिए, जैसे कि
अपना स्टेट हेल्थ को स्कीम्स रहते जिसमें पुअर पीपल कैन रिसीव सम अमाउंट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट्स लाइक दिस. या ठीक है. हम्म. ओल्ड एज पेंशन सिस्टम्स हम्म. देखते हैं कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको पेंशन दी जाती है. कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी पेंशन दी जाती है या कुछ अमाउंट उनको पैसा दिया जाता है. इट डिपेंड्स ऑन द रिच एंड पुअर स्टेट, या यू कैन से द मनी इन हैंड ऑफ द गवर्नमेंट. जिस गवर्नमेंट के पास पैसा है और वहां पे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है, तो क्या करता है कि मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, उनको कुछ पैसे 1,000-500 रुपए मंथली देना शुरू कर देता है. तो दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. गवर्नमेंट कैन गिव इट एंड गवर्नमेंट कांट गिव इट. इट डिपेंड्स मनी इन हैंड ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, to make provision for justice. Sir, point number 4 comes under article. ये सब अभी ये सारा जितना मैं अच्छा हाँ लिख लीजिए. Point number 4 comes under article 41. This comes under the article 41. It comes under article 41. इसमें आर्टिकल का सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ होगा. जैसे फंडामेंटल राइट में we were moving in sequence wise article. Here it is not sequence wise. The reason is that कि some article, जैसे मान लो article 40 है, 39 मैंने किया, 40 नहीं लिखा, so this 40 article is placed in another place. That may be the Gandhian principle, that may be socialistic nature. वहां पे हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. Now, article 5th point, to make provision for just and human condition, to make provision to just and human condition to just and human condition for work and maternity relief, for work and maternity relief. It is also added by Indira Gandhi. पहले नहीं था. What is the maternity relief? Maternity relief. लेडीज का Hello? होगा प्रेग्नेंट होने. हेलो. हाँ या हाँ सुनाई दे रहा, बताइए. Maternity reliefs are related to woman pregnancy, childbirth. Is it? How many days she can get the leave, this leave? So उसका तो आइडिया नहीं है. Maybe 2 months. नहीं. पहले ये earlier it was for 3 months. Now government has changed the rules and now it is 6 months. ठीक है ना. तो 6 महीने की मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी के समय शी कैन टेक द 6 month लीव एंड इन दैट टाइम शी विल गेट द प्रॉपर सैलरी. और ये गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत अच्छा है. मतलब गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल पैसा नहीं कटता है. ओनली टीए के अलावा सारा पैसा सैलरी, घर बैठे बैठे सैलरी मिलती रहती है. प्राइवेट में देयर इज प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेट में 1-2 महीने का तो मैटरनिटी रिलीफ देता है और उसकी सैलरी देता है. उसके बाद कोई ना कोई बहाना बना करके कि हमारा काम अफेक्टेड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस लेडीज को बाहर कर देता है. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द करियर ऑफ द फीमेल इन प्राइवेट सेक्टर. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस. और 2 महीने अगर वो नहीं गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी. और वंस शी लेफ्ट द जॉब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द जॉब. तो मैं बहुत सारे इंजीनियर्स को जानता हूँ, लेडीज को,
बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके कैरियर आफ्टर द मैरिज एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इट इज डिस्ट्रॉयड। अच्छा, मैटरनिटी रिलीफ के अलावा एक होता है चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल लीव, जो कि 2 साल के लिए मिलता है। तो लेडीज 2 साल के लिए पूरा छुट्टी ले सकती है, बट दिस सीसीएल एंड दिस मैटरनिटी रिलीफ इज ओनली अवेलेबल फॉर 2 चिल्ड्रन। इफ मोर देन 2 चिल्ड्रन इट इज नॉट अवेलेबल। फिर उसमें आपको सरकार फ्री नहीं करेगी, आपकी सैलरी कट करेगी। आपको छुट्टी तो दे देगी, लीव विदाउट पे, यानी आप छुट्टी पे हैं, आपकी नौकरी तो बची हुई है, लेकिन यू डोंट गेट द सैलरी इन दैट कंडीशन। एंड दिस इज अंडर आर्टिकल 42। दिस इज अंडर आर्टिकल 42। नेक्स्ट, सर ये ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, उसका क्या होगा फिर? वो क्या है? क्या ये ह्यूमन Human- कंडीशन फॉर वर्क। ह्यूमन कंडीशन का मतलब हर एक को एक ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जो एक मनुष्य को चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप कहीं किसी को जॉब दिए हो और पता लगा वहां पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वहां पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, छत गिर रहा है, ठीक है, सांस लेने की प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, खिड़कियां नहीं है, तो दैट इज इनह्यूमन कंडीशन। समझ गए? क्लियर? हेलो? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो कहीं भी अगर ह्यूमन कंडीशन का मतलब ये है कि जिसमें एक आदमी रह सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जैसे बहुत सारे फैक्ट्री लैब में भी ये नियम है कि ओनर मस्ट हैव टू मेंटेन दीज थिंग्स, ठीक है? और अगर आप वो नहीं मेंटेन कर रहे हो तो कभी भी छापा पड़ेगा, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और बहुत बार ऐसा होता है, इसीलिए तो करप्शन बढ़ता है। जगह प्रॉपर नहीं है, एक छोटे 20 बाई 20 या 10 बाई 10 के रूम में 20 आदमी बैठ करके आपका काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर पानी भी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी पीने को मिल रहा है, प्रॉपर टॉयलेट भी साफ सुथरा नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी हैं, लेकिन सरकार, कुछ सरकारें जो होती अच्छी होती हैं वो टफ होकर के इम्प्लीमेंट करा देती हैं, मोर गवर्नमेंट दैट डोंट इम्प्लीमेंट। अच्छी सरकार वही है जो इन सब चीजों को कर दे, दैट गवर्नमेंट इज ए गुड गवर्नमेंट। और कुछ थोड़ी है गवर्नमेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट, to secure a living wage, to secure a living wage, to secure a living wage, a decent standard of life, a decent standard of life, a decent standard of life, decent standard of life, and social and cultural opportunities, and social and cultural opportunity social and cultural opportunity for all workers. This is Article 43. What is the meaning of living wages? Can anybody define it? Wage और salary में क्या अंतर होता है? What is the difference of the salary and wages? तो वेज डेली बेसिस का वर्क पे होता है। हाँ, वेज का मतलब है डेली बेसिस, पर डे उसको इतना पैसा मिलेगा। अब लिविंग वेजेस का मतलब क्या है?
लिविंग वेजेस का मतलब ये है कि आप उसको एक निश्चित अमाउंट ऑफ द वेल डिफाइंड अमाउंट ऑफ द मनी यू मस्ट हैव टू पे. मतलब इफ एनीबडी इज डूइंग वर्क, then 500, 600, 400, that is decided by the different job to jobs. तो कोई भी आपको आप हायर करता है तो उसको इतना से कम से कम इतना तो पैसा देना पड़ेगा, इतना देना चाहिए, ठीक है ना? And everybody should get the opportunity to social and economic, social and cultural opportunity for all the workers. अब ऐसा नहीं है कि किसी फैक्ट्री में मान लीजिए दीपावली की छुट्टी होती है, होली की छुट्टी होती है, लेकिन अगर 25 दिसंबर आ जाए तो उसकी छुट्टी ना हो, या कोई मुस्लिम फेस्टिवल आ जाए तो उसकी छुट्टी ना हो, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज रॉन्ग. कि अगर एक पर्टिकुलर रिलीजियस या एक पर्टिकुलर लोगों को आप इसका फ्रीडम दे रहे हो, देन यू हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल. Next, 7 point. It is also added by Indira Gandhi to take steps to secure the participation of workers, to secure the participation of workers in the management of industries. In the management of industries. And the management of industries, it is Article 43A. Article 43A. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this? बताइए क्या मीनिंग है इसका? देखिए पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबर यूनियन, और पहले हमेशा लेबरर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते थे इंडस्ट्रीज में. देयर वाज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओनर एज वेल एज द लेबरर. लेबरर सोचते थे कि सारा का सारा पैसा मालिक कमा लेता है, हमें पैसा मिलता नहीं है. मालिक सोचता था कि हम हमेशा घाटे में रहते हैं, तो हम अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से दें. That was a big conflict between the owner as well as the workers. तो इसके कारण बहुत बड़े बड़े स्ट्राइक्स हुए पूरे इंडिया में. So several big strikes and several leaders had been produced as a strike leader. When the Indira Gandhi amended 42nd when Indira Gandhi made 42nd Amendment Act, when she brought that time she added this article. उन्होंने कहा कि इस पॉइंट को लिखो कि अब जो मैनेजमेंट होगा उसमें यूनियन के लोग भी होंगे, यूनियन का इलेक्शन होगा, उसका जो लीडर होगा वो लीडर भी इसका पार्ट होगा. अब फायदा इसका ये हो रहा है कि यूनियन के लीडर को भी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है, हमारी क्या स्टेटस है, क्या बैलेंस शीट है, उसको भी पता रहता है. तो जब कोई भी अनरेस्ट होता है तो वर्कर्स को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उनके बीच में चुन करके आया है एंड he or she is also worker. तो इससे जो conflict between the workers as well as the owners that has been reduced, or you can say that has been minimized. अब rare of rare case है कि ऐसे conflict होते हैं. Next, point 8. To raise the level of nutrition. To raise the level of nutrition. To raise the level of nutrition
and standard of living of people and standard of living of people and to improve public health systems and to improve public health. To raise the level of nutrition and standard of living of the people and improve the public health. ये बताइए कि अगर कोई स्टेट है या कोई गवर्नमेंट है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, और उस कंट्री के लोग एकदम मरे मरे से हों, जैसे आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोग, तो क्या वो कंट्री डेवलप है? उसको हम एक डेवलप कंट्री का दर्जा दे सकते हैं? नहीं. Any country or any state is developed when the people are healthy, तभी तो होगा ना भाई. जिस अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत अच्छाई है मैं जो रीड करता हूँ कि पीपल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश आर फिजिकली हेल्दी. हमें कोई वहां बहुत कमजोर नहीं दिखता है. एटलीस्ट ऑल पीपल आर हेल्दी. बीमार नहीं ज्यादा दिखता है, चाहे वो क्लाइमेट का असर है, चाहे फूडिंग हैबिट का असर है, चाहे जो भी है. लेकिन आप चले जाइए बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा सबसे बेकार, सबसे कमजोर स्टेट. वहां आप देखेंगे कि एक घर में एक फैमिली के 15 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, किसी को खाने का कुछ भी नहीं मिला, सब मरे मरे से हैं. ठीक है ना? तो दिस इज द फंडामेंटल राइट, दिस इज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. अब पब्लिक हेल्थ के लिए क्या करना होगा? देयर शुड बी ए गुड क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स etc. So these point which I just it comes under Article 47. This is 47. सर. हाँ बोलिए. सर, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जितना आप लिखाया है ना, वो सब इंदिरा गांधी ने इम्प्लीमेंट किया है? नहीं, सब इंदिरा गांधी ने नहीं किया है. बहुत सारे पॉइंट पहले से हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे. 2-3 पॉइंट को जोड़ा है, जैसे मैटरनिटी को इंदिरा गांधी ने जोड़ा है, इक्वल वेजेज को इंदिरा गांधी ने जोड़ा है. इस तरह से 2-3 पॉइंट्स दैट हैज बीन एडेड एट द टाइम ऑफ द श्रीमती इंदिरा गांधी. अदर थिंग्स आर एज यूजुअल मेंशन्ड. क्लियर? यस सर. नाउ सेकंड, Gandhian principles. Gandhian principle. देखिए आप लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? ही वॉज ए गुड पर्सन, ही वॉज ए बैड पर्सन, ही वॉज मॉडरेट पर्सन. व्हाट आर योर ओपिनियन? सर ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अंदर में है ना सर? क्या डायरेक्ट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अंदर में है ना, गांधीयन प्रिंसिपल भी? हाँ, इट इज आल्सो अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल. गांधी जी कैसे थे? गांधी जी को नाम सुना है ना, महात्मा गांधी? जी सर. हाउ कैन यू उनको कैसे आप करते हो? उनको रेस्पेक्ट से समझते हो, या उनको आप बेकार का इंसान समझते हो, या बहुत चालाक आदमी है? क्या व्हाट आर योर ओपिनियन? सर मेरे ओपिनियन में
सर वो बहुत स्मार्ट Selfish. था, स्मार्ट तो सर। बहुत स्मार्ट था। Yes, एक sir. ने किसी ने लिखा बीटी ने सेल्फिश। ओके ठीक है, और कोई? एनीवन? बहुत चालाक इंसान था। ही वाज वेरी चालाक। ठीक है, और जो जिसको बोलना बोलो, उससे हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम आपकी कोई उसमें वो है, जो परसेप्शन है उसको आप परसेप्शन आप बताइए, फिर जो रियलिटी है मैं उसको बताऊंगा, उसके बाद आपको जो परसेप्शन बनाना होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ही शांति आदमी था सर। बहुत ही ज्यादा शांति आदमी था। ठीक है, एनीवन एल्स? देखिए आप और कुछ पॉइंट। he is a good man. Opportunities, हाँ opportunities पसंद है। अच्छा, अपॉर्चुनिस्ट था। ठीक है, ओके। He has a vision of future. व्हाट? सर पिक्चर का सर एक विजन रखता था सर वो। अच्छा, पता नहीं, सुनाई नहीं दिया। एनीहाउ, एक एक पॉइंट पे आइए। सबसे पहला पॉइंट है कि लोगों ने गांधी जी को अपना नेता क्यों माना। Although that time Indian National Congress was a big party, big platform, not you can say the party, you can say that platform, and there were several leaders, famous leaders in that. Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Lal Walpal, दादा भाई नौरोजी, बहुत सारे अच्छे नेता थे। अच्छे का मतलब जो सेल्फिश नहीं थे, जो करप्ट नहीं थे, जिनका काम देश के लिए था। Again, when the Mahatma Gandhi came in the market, then slowly and slowly every people will become the follower of Mahatma Gandhi. नेहरू जैसे आदमी, जिसको लोग कहते हैं कि बहुत चालाक थे, बहुत दूरदृष्टता थे, बहुत बड़ा समझदार थे, वो भी महात्मा गांधी के पीछे हो लिए। सरदार पटेल, who is known as the Iron Man of the India, राजेंद्र प्रसाद, जितने नेता थे सबके सब महात्मा गांधी के पीछे हो रहे। क्या सबके सब मूर्ख थे? आप लोग ऐसा समझ में आ रहा है कि these all people they are the fool and only Mahatma Gandhi was very talented? Not. Mahatma Gandhi has some qualities. Qualities was that, first quality was that he has changed the rules and regulations, law in the South Africa. आप सोचिए, हम आकर के अरुणाचल प्रदेश में कानून चेंज कराना चाहें तो आसान है? आप बताइए, आसान है? वहाँ दैट इज नॉट ए वेरी इजी टास्क, इट इज वेरी वेरी बिग टास्क, बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि लोग देखो, जो लोग जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं उसमें चेंज आने में प्रॉब्लम होती है। तो डेफिनेटली पीपल ऑफ द अरुणाचल विल डेफिनेटली अपोज, 100% अपोज करेंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर उसके बाद भी मैं अगर वहां पे कोई पॉजिटिव काम कर सकूं, और शायद मैं कर भी रहा हूं। मैं जब आज के 4 साल पहले आया था तो अरुणाचल प्रदेश में स्टूडेंट 45 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं करता था। आज हमारे स्टूडेंट 4 घंटे क्लास कर रहे हैं और दे आर गिविंग वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट। हमने भी नहीं सोचा था कि हम किसी को 4 घंटे बैठा के पढ़ा देंगे। तो हमारा काम करने का अलग तरीका है। वो तरीका ऐसा है जिसमें किसी को रिटेलिएशन नहीं करना है, क्योंकि आई एम डूइंग फॉर दैट पीपल। वो लोग, उनको लग रहा है कि उनको मिल रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए, ये तो अलग बात है। महात्मा गांधी ने जब साउथ अफ्रीका में अपोज किया गया, उनको उठा के ट्रेन से फेंक दिया गया, दैट टाइम ही वाज अलोन पर्सन इन साउथ अफ्रीका। सोचो साउथ अफ्रीका कितना दूर है। वो आदमी डरता नहीं था। अगर उसको डर होता तो साउथ अफ्रीका में उसको मार डालते लोग। वो खुद डर जाता है, हमें लोग मार डालेंगे, इतने सारे लोग हैं, हम सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम जनता के खिलाफ बात कर रहे हैं। बट उसने कभी हार नहीं मानी और कानूनी तरीके से द बिगेस्ट थिंग वाज दैट ही हैड ऑप्टेड नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। उसको पता था अगर वो वायलेंस करता तो वहां जनता या वहां की सरकार उसको कुचल देती, मार डालती। और ट्रुथ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पीपल विल ट्रस्ट इफ यू आर ऑन ट्रुथ। आज मोदी जी झूठ के पुलिंदे हो गए हैं। क्यों? उनका ग्राफ इतना अच्छा ग्राफ था उनका पॉपुलैरिटी का। व्हाई इट इज फॉलिंग? बिकॉज नाउ व्हेनेवर ही इज स्पीकिंग ही डोंट थिंक हम अच्छा बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
तो किसी की इमेज उसकी ट्रुथ पे बनती है, पहली चीज। दूसरी, उसकी ये स्ट्रगल और प्रूफ। तो उसने चूंकि साउथ अफ्रीका में कानून को चेंज करा दिया था, इसलिए जब भारत में आया तो जितने बड़े बड़े लोग थे, जो प्रोमिनेंट लीडर जिनको समझते थे, जो बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए थे, उस सब के सब इसके फॉलोअर हो गए। सेकेंड थिंग, ही स्टार्टेड साल्ट मूवमेंट, नमक सत्याग्रह। नमक एक ऐसी चीज है, सब जब उन्होंने स्टार्ट किया तो सब बोले ये बेकार का आदमी है, पागल आदमी है, नमक की क्या वैल्यू है, 10 पैसे 20 पैसे केजी मिलता है। लेकिन उसने नब्ज क्या पकड़ा कि नमक एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है कि दिस इज अ सॉल्ट, क्योंकि बिना नमक के खाना तो कोई खाता नहीं है। उसकी सोच कहाँ थी, उस जगह पे स्ट्राइक किया जहां बिना बताए सबको पता लग गया कि अरे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। although economically market value it has nothing, but people awareness point of view it was very big. तीसरी चीज, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि सेल्फिश था, हाउ ही वाज द सेल्फिश? अगर वो सेल्फिश होता तो प्रेसिडेंट बन सकता था, प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, मिनिस्टर बन सकता था। इसके अलावा जो भी हमारी वो बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसका अध्यक्ष बन सकता था। तो ही डिडंट टेक एनी पोस्ट। तो सेल्फिश तो नहीं था, इसमें तो कोई नहीं शक है। लेकिन इसके अलावा गांधी जी स्मार्ट थे, इसमें कोई शक नहीं, चालाक भी थे, दैट इज आल्सो ट्रू। शायद वो उसकी नीड भी थी, क्योंकि इफ ही वाज नॉट स्मार्ट एंड ही वाज नॉट क्लेवर, तो अंग्रेज उनको हमेशा मारने के चक्कर में रहते थे। जब कोई मूवमेंट होता था अंग्रेज खुश हो जाते थे कि अब ये मूवमेंट फेल कर जाएगा, जनता इसके खिलाफ हो जाएगी और हम इसको जेल में डाल करके सड़ा डालेंगे, कुचल डालेंगे, मार डालेंगे। और ही बेंट 11 टाइम्स इन द जेल। आज हम आप 10 मिनट के लिए जेल डालने के लिए डरते हैं, अरे जेल जा रहे हैं लोग, क्या कहेंगे, हमारा सोशल स्टेटस खत्म हो जाएगा। ही नेवर ऑफरेड ऑल दिस। दीज वेयर द फीचर्स ऑफ द महात्मा गांधी। अब आप लोग अपने हिसाब से जो जिसको समझना है, जो जैसे बनाना है, जो जिसके दिमाग में, देखो नेताओं की भाषा और ब्यूरोक्रेट की भाषा में अंतर होता है। ब्यूरोक्रेट जो फैक्ट है, जो सच्चाइयां हैं, उस पर बात करता है। नेतागिरी में जो बुराई होती है, जो कमियां हर एक व्यक्ति के अंदर कमी होती है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप, तो नेता उस बुराई को केवल बताते हैं, उन्होंने ये कर दिया, चोरी चोरा कांड लिया, उन्होंने प्रोग्राम को विड्रॉ कर लिया। अरे विड्रॉ नहीं कर देता तो क्या होता यार, 25, 10, 15 पुलिस वाले को मार दिए हो तो पुलिस रिटेलिएट करेगी तो 1000 लोगों को मार डालेगी कि नहीं मार डालेगी? तो ही वाज क्लीवर इन दैट सेंस, ही स्टॉप द मूवमेंट इमीडिएटली एंड प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ सेवरल पीपल। तो ये सारे, दूसरे चीज गांधी का ये सोचना था कि पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, ये सब देश को प्रोग्रेस में नहीं ज्यादा ले जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कहां से होगी? सबसे जो स्मॉल यूनिट है, दैट इज विलेज। अगर एक विलेज हम आप एडॉप्ट करके उस विलेज को एक अच्छा आइडियल विलेज बनाए। आइडियल विलेज कैसे बनेगा? देयर शुड बी रोड, दैट रोड शुड बी क्लीन एवरी डे, बिजली होनी चाहिए, नेटवर्क अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए, लोग डेवलपमेंट, कोई फैक्ट्रीज या छोटे मोटे वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। अगर ये सब चीज हम काम कर दें तो कोई भी विलेज सिटी से कम नहीं होगा। आपको ये साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि विलेज में नेचुरल इन्वायरमेंट है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जमीन है, सब कुछ है। तो उनका ये सोचना था कि हम सबसे पहले विलेज को स्ट्रांग करें, और अगर विलेज स्ट्रांग होगा तो स्टेट स्ट्रांग होगा, when the state will strong then the country will strong. This was the principle of the गांधी। अब आप बताइए कि गांधी जी कैसे थे? और सबसे बड़ी बात जो मैं भूल गया, गांधी जी के पीछे several lakh people they were followers। आज आपको और हमको कह दिया जाए तो 10 लोग आपके साथ नहीं जाएंगे,
5 लोग भी नहीं जाएंगे, शायद घर का भी आदमी कहे जाओ तुम फालतू के आदमी हो, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। रोज फ्री में घूमने जाते हो, झगड़ा करने जाते हो, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन उस समय लोग गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी, किताबें जला दी, कपड़े जला दिए। ये पॉपुलरिटी थी गांधी की। तो दैट इज डिफरेंट इशू। नाउ लेट्स कम गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में फर्स्ट पॉइंट जो है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। To organize village panchayat and endow them the necessary power and endow them with necessary power endow them with necessary power and authority to enable them functions and authority to enable them to function as unit of self-government. To function as unit of self-government. आर्टिकल 40। अब देखिए आर्टिकल 40 मैंने वहां पे नहीं दिखाया था। सर आर्टिकल 21A भी सर डीपीएसपी के अंदर आता है क्या सर? हाँ आता है, अभी आएंगे, वहां पे भी आएंगे, आता है, दैट कम्स अंडर दैट। नहीं आर्टिकल 21 नहीं, इसके अंतर्गत नहीं आता। आर्टिकल 21 फंडामेंटल 21A सर। हाँ 21A ड्यूटी में आता, फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। आई थिंक दैट प्रिंसिपल नहीं, अभी देख लेंगे। डोंट वरी। ये कौन है? ये पॉइंट आपने देख लिया? क्लियर? यस सर, यस सर। देखिए आप इससे सहमत हैं कि नहीं कि ग्राम जो है विलेज लेवल या बस्ती लेवल पे मजबूत होना चाहिए? दैट आर यू एग्री और नॉट? एग्री है सर, एग्री है। एग्री है, क्योंकि रियलिटी यही है कि अगर देखो गांव के लोगों की समस्या अगर खत्म रहेगी तो उसके हायर लेवल की समस्या खत्म होगी, हायर लेवल की समस्या खत्म होगी तो स्टेट लेवल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी और अल्टीमेटली कंट्री ग्रो करेगी। दिस वाज द प्रिंसिपल। अब लेकिन ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था। राजीव गांधी की सरकार ने इसके लिए पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर्टिकल 73 और 74 को लाने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट पास। in one house it had been passed, in another house that is not passed. Then again BP Singh tried to bring it, but again he is not succeeded. Then PV Narasimha Rao in 1993 make law by making the 73rd and 74 amendment. तो अब तो कंपलसरी हो गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इसकी इलेक्शन कराना पड़ेगा। पहले केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, कराएं या ना कराएं दैट इज डिफरेंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, टू प्रमोट। सर ये आर्टिकल 40 को नरसिम्हा गवर्नमेंट जो लाया है ना? नरसिंगा नहीं, आर्टिकल 40 को नरसिंगा गवर्नमेंट ने नहीं लाया है, ये तो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से था। नरसिंगा गवर्नमेंट ने पंचायत राज सिस्टम एंड म्युनिसिपल के जो कानून हैं उनको लाया है।
देखो पहले वो किसी आर्टिकल या पहले किसी शेड्यूल में नहीं था, तो इट वाज नॉट ए कंपल्सन ऑफ द गवर्नमेंट। बात समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। पहले सरकार की मर्जी थी कि इसको करे या ना करे, ठीक है ना, लेकिन जब से वो कानून बन गया तब से सरकार बाउंड हो गई, उसको करना ही पड़ेगा। इसीलिए देखिए अभी अरुणाचल में पंचायत के इलेक्शन हुए कि नहीं हुए? अभी रिसेंटली पंचायत इलेक्शन इज हेल्ड इन यूपी आल्सो, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, to promote cottage industry, to promote cottage industry on an individual basis in rural areas, on an individual basis, on an individual basis in rural areas. In rural areas. This is Article 43. किसका माइक्रोफोन ऑन है अननेसेसरी? To promote cottage industry on an individual basis in rural areas. ओके, देखिए आज फिर गांधी जी का रिलेवेंस हो गया है। जब कोरोना फैला, कोरोना फैलने के बाद when import export all industries etc that has been shut down, तो प्रधानमंत्री जी ने किस चीज का आह्वान किया? लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल किया कि नहीं किया? यस सर, यस सर। वो क्या चीज है? वो यही गांधी जी का ही तो प्रिंसिपल है। लोकल फॉर वोकल मतलब जो गांव में बनता है, चाहे कपड़े हैं, चाहे पिकल्स हैं, चाहे कुछ और चीजें हैं, लोगों को उस पर डिपेंडेंट होने की जरूरत है। वी शुड नॉट नीड टू इम्पोर्ट थिंग्स। इतने साल बाद गांधी जी का फिर सच्चाई समझ में आई है इस सरकार को। नहीं तो भारत में क्या हो रहा था, जितने भी लोकल काम थे वो सब खत्म हो गए थे। नहीं तो पहले हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे काम होते थे, हर एक स्टेट में, हर एक अलग अलग एरिया में डिफरेंट इट वाज फेमस फॉर दैट। बट ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनीकरण, इट हैड बीन डिस्ट्रॉयड। लेकिन वो सब चीजें रुक गई ना इस कोरोना में, महामारी में। अब जनता को समझ में आ गया कि हमें अपनी इकोनॉमी खुद बनानी होगी, हमें देश के सिस्टम से और सबसे इकोनॉमी नहीं डेवलप होगी। तो टुडे अगेन गांधी जी इज वेरी रिलेवेंट पर्सन। नेक्स्ट, to promote the educational and economic interest of SC, STs and other weaker sections. इसी के अंतर्गत रिजर्वेशन और उस सब चीज की बात होती है जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो लोग पुअर हैं या जिनकी वैल्यूज खत्म हैं, उनको किसी तरह रिजर्वेशन और सब चीज दे करके उनको एक मेन स्ट्रीम्स में लाने की जरूरत है। दिस इज अंडर आर्टिकल 46। फोर्थ पॉइंट सर क्या ST SC टू प्रमोट द एजुकेशनल, लिख लीजिए, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC and ST। To promote the educational and economic interest of SC and ST। अब जो स्कॉलरशिप की बात होती है अरुणाचल में,
वो इसी के अंतर्गत है कि उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार उनको कुछ न कुछ पैसा दे दे, जिससे गरीब आदमी का बच्चा भी आकर के पढ़ सके, किताबें खरीद सके, अपनी फीस दे सके। तो दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट इज नॉट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट कि नहीं ये तो हमारा अधिकार है। अभी कल कहीं में पढ़ रहा था कि चीफ मिनिस्टर के घर पे धरना दे दो क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अरे वाह भाई, गजब का तरीका है। चीफ मिनिस्टर घर पे धरना देने चले जाओगे, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर वही पुरानी घटना रिपीट हो जाएगी, फिर गोली कांड हो जाएगा, फिर लोग मर जाएंगे। तो ये सब एक्सट्रीम केसेस, दैट इज नॉट ए गुड फॉर एनीवन। लेकिन क्या करोगे, होता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब आपकी एज 30, 32, 35 साल तक रहती है तो आप समझते हो कि दुनिया में आपसे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया में पड़े हैं, कानून पड़ा हुआ है, बड़े से बड़े लोगों को, बड़े बड़े से गुंडों को उठा करके अंदर में डाल करके फड़ा दिया जाता है, कुछ नहीं कर पाता कोई। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोहिबिट intoxicating drinks and drugs. Intoxicating drinks and drugs. Drinks and drugs. आप देखते हो आजकल के यंगस्टर्स वो ड्रग्स में भी फंस जाते हैं। तो ड्रिंकिंग भी आजकल की एक सोशल स्टेटस हो गया है कि पीना ही पीना है आजकल के लोगों का। तो सरकार का काम है इसको रोक लगाना, ना कि प्रमोट करना। एंड दिस कम्स अंडर आर्टिकल 47। एंड नेक्स्ट, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ द काउच। 5th पॉइंट, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ। 43 और 47 बार बार आ रहा है क्या सर? हाँ, 47 बार बार आ रहा होगा क्योंकि कुछ पोर्शन का नेचर आपका सोशल है और कुछ पोर्शन का नेचर गांधीयन है। जी जी। तो हो सकता है कि 2 जगह आ रहा हो, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, calf and other milch animals, this comes under the article 48। अब देखिए, इसके लिए जो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट्स है, eating of the beef that is banned, but there are several states where it is easily available, people have main fooding habit। तो इसको भी सरकार, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट is trying to ban that, but वो संभव नहीं है और उसने कर भी नहीं पाया। तो these 5 points comes under the Gandhian principle। अब देखिए, गांधी जी, आप, हाँ सर, नंबर 5 को सर, to prohibit the slaughter of cow, to prohibit the slaughter of cow, calf, CALVS, calf माने जो गाय के छोटे बछड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, calf, and other milch animals। मिल्च एनिमल मतलब जो दुधारू, जो दूध देते हैं। अब देखिए, यहाँ गांधी जी का अगर कहो तो बहुत चालाकी से काम किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी को पता है कि इंडिया इज हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी। तो इस पॉइंट को इसलिए उनको रेज करता था कि इससे हिंदू यूनाइट होंगे तो हम जो है अपने मूवमेंट को चला पाएंगे। तो यहाँ पे गांधी जी ने बहुत ही चालाकी और होशियारी से काम दिया। Next point, liberal intellectual rights। Liberal intellectual right, intellectual principles।
liberal intellectual principles. First point, to secure for all citizens a uniform civil code. A uniform civil code throughout the country. Civil code throughout the country. This is Article 44. Can anybody tell me the meaning of uniform civil code? यूनिफॉर्म सिविल कोड किसे कहते हैं? Anyone? Sir, marriage act. मैरिज एक्ट, ओके, और रूल एंड रेगुलेशन सर, सब जगह में एक होना सर। हाँ, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत के रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी कस्टम्स के हों, किसी भी तरह के लोग, सबको कानून, मैरिज का कानून एक होना चाहिए। अब जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, यू कैन मैरी वन गर्ल। मुस्लिम्स में 4 लोगों से शादी कर सकते हैं। आप लोगों के यहाँ भी है कि देयर इज पॉलीगॉमी, बहुत सारी मैरिज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि देयर आर सम ट्रेडिशनल लॉ, जैसे ट्राइबल बेल्ट्स में ट्रेडिशनल लॉ है, मल्टी मैरिज दैट इज फ्रिक्वेंटली अलाउड, लेकिन और सब जगहों पे तो नहीं है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली दैट इज टारगेटेड टू द मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम के कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़ा क्रूअल टाइप में है। जैसे उन्होंने किसी से शादी किया और पता लगा कि मान लीजिए लेडी प्रेग्नेंट हो गई, 10-20 दिन में बच्चा होने वाला, तब तक उसने उसको तलाक बोल दिया और किसी दूसरे से शादी कर दी। अब बताइए, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ दैट लेडी? इज इट जस्टिसेबल और नॉट? ठीक है ये कि गलत है? गलत है गलत है भाई, क्योंकि जब उस लेडीज को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, देन यू रन अवे। इसी तरह उनके यहाँ क्या है कि हलाला सिस्टम है। हलाला सिस्टम में क्या है कि कोई लड़की किसी से शादी की, महीने 2 महीने बाद वो उसको तलाक दे दिए। तलाक देने के बाद उस लड़की की शादी अपने किसी परिचित से कर दिए, भाई से कर दिए, किसी और से कर दिए, मामा के लड़के से कर दिए, किसी से। वो उसके साथ 2-4 महीने 6 महीने रहा, फिर उसको बोला कि फिर तुम तलाक दे दो, उसने फिर तलाक दे दिया। अब वो आदमी फिर उससे शादी कर लेगा, यानी ऑर्गेनाइज प्रोस्टिट्यूट, कि आप लड़की को एक मटेरियल समझ रहे हैं जिसके साथ उसको कह दीजिएगा आप जाइए, सो जाइए, आप रात भर अपना जो करना है कर लीजिए। तो इट इज जस्टिसेबल? इट इज नॉट जस्टिसेबल, क्योंकि इस तरह से आप 4 लड़कियों का भविष्य बर्बाद करते हैं। कर सकते हैं, करते हैं, नहीं करते, दैट इज डिफरेंट। इसीलिए भारत सर आपका वॉइस ऑफ हो गया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी और लोगों को, हर एक को एक शादी ही करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट सर, तो इसमें मुस्लिम लोग को क्या बोलना है? इसमें मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं इसके लिए? तो सर मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हमारे कानून में, हमारे शरीयत में, हमारे मुस्लिम लॉ में लिखा है कि हम 4 शादियां कर सकते हैं और हम जब चाहें उनको तलाक दे सकते हैं। जो मतलब वो अपने जो रिलीजियस लॉ है उससे इसको प्रोटेक्ट करते हैं।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? कि हमारी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ नियति है, तो नियति क्या कहेंगे, हम तो 10 शादी कर सकते हैं, 5 शादी कर सकते हैं, हमारा ट्रेडिशन है। तो ये ट्रेडिशनल लॉ से प्रोटेक्ट हो रहा है, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन लॉ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर कहीं कोर्ट में मैटर जाएगा तो वो लोग अपनी तरफ की पॉइंट रखेंगे, दूसरे लोग अपनी पॉइंट रखेंगे। अब अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, फिर कोई और लॉ नहीं होगा, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, चाहे ट्रेडिशनल लॉ हो, चाहे व्हाट एवर दैट। तो इट इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द फीमेल, सिंपल लैंग्वेज में समझो, और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टाइम ओवर होने जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, to provide early childhood, to provide early childhood, to provide early childhood care and education, care and education, care and education for all children, सर एक for बार all रिपीट कर children, दीजिए, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड to provide early childhood care and education, care and education for all children, for all children until they complete the age of 6, until they complete the age of 6. सर इसका आर्टिकल भी फंडामेंटल राइट्स है सर, थोड़ा सिमिलर है ना सर? रुक जाओ बता रहा हूं, आप इसको लिख तो दो। इट इज आर्टिकल 45। देखिए पहले ये पॉइंट हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा हुआ था और एज 6 तक रखा हुआ था कि जो भी बच्चा है 6 साल तक सबको जो है एक जैसा, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन। इसी आर्टिकल को अमेंड करके 45A जोड़ा गया और इसके साथ साथ ये जोड़ा गया कि नाउ इट इज ए फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब फंडामेंटल राइट में क्या हो गया कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन who are in the age of up to the 14, एज ऑफ 6 से करके एज ऑफ 14 कर दिया गया, तो इसको भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री, टू ऑर्गेनाइज agriculture and animal husbandry। जैसे आपका है पोल्ट्री फार्म, पिगरीज, फिशरीज एक्सेट्रा, ये सब इसके अंतर्गत आता है, दैट इज अंडर आर्टिकल 48। और इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल क्या है? हस्बेंड्री, HUSBANDRY, एनिमल हस्बेंड्री। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, टू प्रमोट international peace and security, this is article 51, this is article 51।
जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं और सारी चीजें इंटरनेशनल घटनाएं होती हैं, वो सब आर्टिकल 41 के अंतर्गत आती हैं. So these are the directive principles. It is not directly enforceable in the court. Court cannot give directions to government to do this. If government will do it, then it is very good. If government will not do, nobody can pressurize.